एक जो है कि यार क्या गलत कर रहा हूँ, कैसे मैं अब इस चीज़ को ठीक करूँ, वो वाली फीलिंग भी आ रही होगी हर फेल्ड अटैम्प्ट के साथ। तो जब आप मतलब पहले 2-3 बार जब आप फेल होंगे तो आपने इंप्रूवमेंट करी होगी, बट उस 7th-8th फेल्ड अटैम्प्ट के बाद क्या एक्सपीरियंस था कि यार अब ऐसे ही चलने दूँ या फिर कुछ और एक्सप्लोर करूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली होता क्या है कि बच्चे बहुत सारे फेलियर्स जो है अपनी लाइफ में जीते हैं, बट बहुत कम ही कोशिश करते हैं उन फेलियर से आगे बढ़ने की या उन पे काम करने की। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लोकेश कुमार, जिनका रिसेंटली कंडक्टेड ईयू एग्जाम 2023 में 313 रैंक आया है और बहुत ही मेहनत करी उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। चीज़ें आसान नहीं थी, सिलेक्शन होने के बाद तो चीज़ें आसान लगती हैं, बट इन्होंने एक टफ जर्नी जो है जी है इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए। 11 बार एसएसबी का इंटरव्यू दिया है, ठीक है, और यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं। सीएपीएफ में ऑल इंडिया रैंक 5 था इनका, लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति है ना वो इतनी मजबूत है कि भाई मुझे कुछ और भी अचीव करना है, और ये डेडिकेशन मतलब बहुत रेयर ही मिलती है। तो लेट्स वेलकम, लेट्स अप्रिशिएट लोकेश कुमार। लोकेश, मैं आपसे जो है कुछ शब्द यहाँ पे जो है चाहूँगा कि आप अपनी जो जर्नी है प्रिपरेशन की उसको समराइज करिए लगभग 100-150 वर्ड में, मतलब छोटे वर्ड में मत खत्म करिएगा। Okay, fine. Greetings everyone. I am Lokesh Kumar and thank you so much sir for inviting me here. And thank you for the kind words. They were very आप डिजर्व करते थे ये words. Thank you, thank you. So I've been asked to give an inspiring speech, something that inspires people. I would humbly say that I haven't done as much to inspire someone. Although since sir have requested, I will share my experience of the journey. So as sir has already mentioned, I come from a defense background primarily. My grandfather, my father, they were in the army. My brother is still in the army, and I also wanted to join the army only. So after graduation, I started attempting for the defense exam, CDS, AFCAT, CG CAT as well in the end. And I felt that maybe I should get recommended, but unfortunately, or let's say fortunately, I got conference out 10 times. So it was almost like I was used to saying the words to my mother. वो हमेशा मुझसे फ़ोन करके पूछती थी क्या हुआ, I used to say नहीं हुआ. She used to say टिकट के लिए टिकट करवा लिया, मैं कहा हाँ करवा लिया. हर बारी यही कि नहीं हुआ, ठीक है टिकट हो गया, नहीं हुआ टिकट कर लिया, नहीं हुआ अगला इंटरव्यू कब है, 2 महीने बाद. तो ये सब करते करते when I finally switched to civil services, when I got to know कि okay maybe it's a little difficult for me to get recommended, although I was improving in the SSBs. बट उसके बाद जब मैं स्विच करने लगा इस साइड पे, तो आई हैड अ पैल्पेबल फियर ऑफ सिविल सर्विसेज बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू दी हैबिट ऑफ स्लॉगिंग फॉर आवर्स. आई कुड स्टडी फॉर 1.5 hours at one stretch, but I was not in the habit of slogging. But fortunately I had some seniors with me. Shivin sir, he is an IPS right now, is undergoing training. I'm very grateful for him. Manish sir, he is an IRS right now. Priyansh sir, there are many names, I will forget the names if I start making a list, but I'm grateful for them. These are the ones who have ensured my selection. After that I gave my CAPF exam, and because of the continuous failures in the 10 times, my expectations were very low sir, very low. I absolutely just wanted one seat for me, even in the reserve list. That is what I wanted, but with God's grace I got rank 5, and that was something that, like, in the last 4-5 years after school, after graduation, I had just one success which came as a breather for me. After that I also gave my UPSC mains and EPFO as well. During giving UPSC prelims that time, I wasn't sure of whether I would be clearing it or not, so I also gave UPSC EPFO, but fortunately I cleared that exam. And the strategy for EPFO was just reduced to going for the previous year questions. That is it, nothing more. And I appeared for that exam. I could not clear APFC, but then I got into EPFO EO, and I appeared for the interview. That was fine, and then finally I'm here, sir. Great, great. लोकेश, आप ना बहुत हम्बल हो रहा, बहुत इजी अपनी जर्नी बता रहे हो, बट ट्रस्ट मी, जो लक फैक्टर होता है, जो सिलेक्शन फैक्टर होता है, उसमें कहीं ना कहीं दिस इज द मैरिज ऑफ योर प्रिपरेशन विद द अपॉर्चुनिटी. अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है तो अपॉर्चुनिटी आपको कभी ग्रैब करने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग थी ना डिफरेंट एग्जाम की वजह से कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो आप उस पर फिट बैठ गए, ठीक है, और आपने बहुत मेहनत करी है यार, मतलब ऐसे आप मत अपने आपको जो है ज़्यादा हम्बल बनाइए. और दोस्तों, अगर कोई डाउट जो है पूछना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है इनकी प्रिपरेशन जर्नी के रिगार्डिंग, ही
CAPF ज्वाइन किया था सर? No, I took an extension for civil services and then I'm planning to go for civil services eventually. और एक ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्टार्टिंग में इनका सपना था डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना, ठीक है, मतलब पूरा जोर लगा दिया अग्रे ने, 10 SSB भी दिए, और जब सिलेक्शन हो गई CAPF में तो अब इनका ओरिएंटेशन सिविल साइड पे आ गई, तो ये EOA ज्वाइन करेंगे अब शायद। लेकिन जैसे सर उसमें भी कमांडेंट की पोस्ट मिलती है ना, असिस्टेंट कमांडेंट, Sure. तो सर मतलब आप डिफेंस ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे तो मतलब ज्वाइन क्यों नहीं किया? It's a very valid question actually, and not just वो assistant commandant की position, it's a level 10 gazetted post, 3 stars, so it's a very big deal for a person like me. जब see the decision to finally go for assistant commandant or for some other exam is based on the fact कि आप किस extent तक satisfied हैं अपने effort से. Are you 100% satisfied कि आपने इतना जोर लगाया और जितनी किस्मत थी आपको मिल गई? In my case, I personally feel कि अभी भी there is something that I think I can achieve more. With all due respect, that is a fantastic job, but I feel I can do more, and that is why I switched from the defense to the civil service. Otherwise, that was a fantastic job. अभी भी जो सपना है ना सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने का, वो इनके अंदर है, तो अभी टिकने वाले नहीं है। ये बोलने के बाद भी ये थोड़ा सेटल होने के बाद उस एग्जाम की तरफ जाएंगे पक्का। कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? लाइक कंटिन्यूअस प्रिपरेशन, लाइक 10 SSBs मतलब काफ़ी लंबी साइकिल, राइट? तो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में ऐसे थकान नहीं हो गई कि चलो CAPF मिला तो CAPF ही ज्वाइन कर लेते हैं, या अब EOAO मिला है तो इसी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो थकान नहीं हुई पढ़ते पढ़ते, या हाउ आर यू लाइक विलिंग टू कंटिन्यू दिस tedious journey? Yes, that is also a very good question. फटीग आ जाता है, जाहिर सी बात है, आप इतनी लंबी जर्नी में होते हैं और ख़ासकर जब वो जर्नी फेवरेबल भी नहीं होती है. इट्स नॉट कि इट्स अ गुड जर्नी एंड देन यू जस्ट गोइंग ऑन. But again, you need to take some strategic breaks. That is what I've like learned from my experience. Strategic breaks in the sense 10 या 12 दिन आप ऐसा करें, सोशल मीडिया से आप दूर हो जाएं, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, घर पे बात करें, अपने सीनियर से बात करें, so that it puts you in a position to come back really good. So आप उसके बाद फिर अच्छे से प्लान करें और फिर अपना जो नेक्स्ट आपका एंडेवर है उसमें जाएं. वन मोर थिंग, जैसे अब काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल गई है आपको, तो अब आपका ऐसा नहीं कि एंजॉय करता हूँ लाइफ, क्यों मतलब फिर से उसी साइकिल में कि सोशल मीडिया से दूर और प्रिपरेशन. दैट इज़ ट्रू मैडम, बट अगेन जब ये प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद लाइक लेट्स से 30 इयर्स जो आगे के हैं, 30-35 इयर्स, वो ऑलमोस्ट लाइक दे आर प्रेडिक्टेबल, स्टैग्नेंट है कि ये चलो ठीक है आपको ये नौकरी मिल गई, आपने ऐसे अपना फ्यूचर बिताना है. बट दिस टाइम आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्रेशियस. जितने मेरे सीनियर्स रहे हैं, द लेवल दैट दे हैव रीच्ड, द स्ट्रगल दैट दे हैव अंडरगॉन, मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए. नहीं होगा तो इट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट आई वोंट हैव द रिग्रेट दैट आई डिड नॉट गिव माई बेस्ट. दैट इज़ ऑल. इन लोगों को देख के ना बताऊँ, एक शेर याद आता है जो इनका UPSC का प्यार है, उससे शेर याद आता है कि राह देखेंगे तेरी चाहे ज़माने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं. तो ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे लोगों से हमें. थैंक यू. ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सॉरी, एक मिनट, ये एक अचीवर बैच है क्योंकि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और मैं चाहूँगा कि आप इसको यहाँ पे लगाइए. थैंक यू. और मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे जो है IGP प्रोग्राम में थे, फ्री स्टूडेंट है हमारे, लेकिन ये हमारे साथ एसोसिएटेड थे हमारे डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू, और शायद हमने इनकी कहीं हेल्प करी हो, अगर मेंशन करना चाहें तो. Yes, yes. So when you have to make a strategy of some exam, you just go on the YouTube and you type okay strategy for this exam, and then you have some YouTube videos. तो उसमें मुझे कुछ वीडियोस दिखी थी, EduTap की भी दिखी थी, जिसमें देयर वर सम टॉपर्स जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी. तो वो आप 10 बार अब देखेंगे, सो यू विल मोर और लेस बी क्लियर विद द एग्जाम कि आगे कैसे बढ़ना है. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक प्लानिंग में अगर कुछ हेल्प हो जाए तो दैट इज़ बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच. एंड दिस बुक इज़ फॉर यू. मुझे लगता नहीं कि आप इस बुक को एक बार में पढ़ पाओगे, लेकिन कम से कम 100 दिनों में 1 घंटे लगा के पढ़ ही लेना यार. सर थैंक यू सो मच. ओके, ग्रेट. थैंक यू. तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लोकेश कुमार, जिनका जो रैंक है इस बार के PFC एग्जामिनेशन वो 313 था, और लोकेश ने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हमने लोकेश की जर्नी से. तो आप इस पूरे सेशन को एंजॉय करिएगा, जहाँ पर हम लोकेश से बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा ज्ञान इनसे लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम लोकेश जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हमें इस एग्ज़ाम की जो है तैयारी करनी चाहिए. तो लोकेश, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि
किस तरीके से आपने 12th के बाद डिसाइड किया कि भाई आपको कौन से एग्जाम की तरफ जाना चाहिए और किस तरीके से अपने कैरियर को प्लान करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है 12th के बाद कि हमें डिसीजन लेना होता है कि भाई हमारा कैरियर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया और किस तरीके से वो आपका डिसीजन फिर आपको जो है आगे आपको देखने को मिला? Sir, thank you for having me here, sir. First of all, I'm very grateful that I've been invited here to share my experience. जहाँ तक सर करियर प्लानिंग की बात है आफ्टर 12th, सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वेंट एज पर माई स्ट्रेंथ्स. So my strength was in the physics, chemistry, mathematics background, and I was decently physically fit as well. So army का background था and उसी में जाना था. I gave my India attempt, got convinced out. But after that, I went to college, and then I had a fresh perspective on exactly what I would like to do. Right. So it wasn't. It's not necessary कि आप एकदम fix कर लें कि okay अब यही करना है. It's not necessary. आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर decently. And in my personal case, I explored CAT options as well. I also explored UPSC. But after that, I decided that primarily I would be going for defense exams after graduation. Just in case if I do not make it to the defense exams, I would be going for the civil services exams. Right. And you have done your 12th from Jhansi, Uttar Pradesh. Sir. And then you have moved to Delhi for BSc Physical Science from Hansraj College. Sir. So how was the experience in Delhi? मतलब एक एकदम नई दुनिया खुलती है ना. आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और एक डिफरेंट बैकग्राउंड आपको एक डिफरेंट जो सिनेरियो आपको दिखता है. तो हाउ वाज द फिटिंग इनटू दिल्ली इन द ग्रेजुएशन टाइम? Sir, rightly pointed by you, sir. Jhansi is a very, I would say, a very mediocre place. It's very peaceful as well. Right. And I was used to living in cantonments. तो वहाँ की वाइब भी बहुत ज़्यादा peaceful होती है. जब दिल्ली आए फर्स्ट टाइम तो आई हैड दिस इमेज लाइक दिल्ली हैज़ इट्स इमेज इन ऑल दी कंट्रीमेन ऑफ इंडिया. सो आई हैड दैट इमेज एज वेल दैट इट वॉज अ लिटिल ओवरवेलमिंग. There was some culture shock as well. Right. Modernity and the principles of freedom. So you take Altogether some a different time. environment. Altogether. Yes, it's an altogether different environment. You get a little, you take some time to get used to it as well. So that was not that big a deal for me because I had not gone there with a lot of expectations. My expectations were that okay, I'll do my graduation, I'll explore some options, and then I'll be building my career. So I was very simple, and that is why it did not have that much of impact. Great. But मेरा ना एक क्वेश्चन अगेन यहाँ पर जो है एक राइज होता है कि there are lot of distractions when you are studying in Hansraj College in Delhi. So how you avoided those distractions in your preparation time? Rightly, sir. Distractions are a normal part of life. Right. कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. दिल्ली में ज़्यादा है, झांसी में कम है, but है. I think in my experience, what I've learned is if you have your inner self that is strong, if your inner compass is strong, then distractions would be minimum. They won't go, they won't vanish, but their impact would be minimum. As soon as you realize that okay, I'm getting a little drifted away, you'll get back to whatever you were doing. And I think that is something that really helped me in just very nicely pointed out by you that देखो अगर हमारा इनर सेल्फ मजबूत नहीं है ना तो हम कहीं भी इजीली मूव हो जाएंगे, मतलब कहीं भी इजीली ड्रिफ्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर हम अंदर से स्ट्रांग है ना तो जितनी मर्जी स्ट्रांग डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो हम उनको आराम से हैंडल कर लेंगे. तो जब आप ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे तो आपने डिफेंस को अपना टारगेट बना लिया. सर. एंड व्हाई इज डिफेंस? Why not other options? Sir, defense primarily because 3 generations of my family have been into the defense forces, and I also realized that maybe my strengths are also commensurate with the requirements of the defense. तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स देने शुरू किए Sir. लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया. Sir. तो मतलब क्या होता था हर बार जब एसएसबी में जा रहे हैं, फिर आपने बताया कि आपके मदर फ़ोन करते थे, फिर वो बोलते टिकट हो गई है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही होगी हर बार, और एक जो है कि यार क्या गलत कर रहा हूँ, कैसे मैं अब इस चीज़ को ठीक करूँ, वो वाली फीलिंग भी आ रही होगी हर फील्ड अटैम्प्ट के साथ. तो जब आप मतलब पहले 2-3 बार जब आप फेल होंगे तो आपने इंप्रूवमेंट करी होगी, बट वो 7th 8th फील्ड अटैम्प्ट के बाद क्या एक्सपीरियंस था कि यार अब ऐसे ही चलने दूँ या फिर कुछ और एक्सप्लोर करूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली होता क्या है कि बच्चे बहुत सारे फेलियर्स जो है अपनी लाइफ में जीते हैं, बट बहुत कम ही कोशिश करते हैं उन फेलियर्स से आगे बढ़ने की या उन पर काम करने की. तो आपकी अप्रोच क्या थी इस पर्टिकुलर टाइम पर? सर, जब मैं एसएसबी दे रहा था जब आई हैड दिस व्यू कि मैं एक डिसेंट बच्चा हूँ, मेरा हो जाना चाहिए एसएसबी में. आई हैड दैट व्यू और एंड आई वाज वर्किंग हार्ड एज वेल, बट फॉर सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू गेट रिकमेंडेड. कॉन्फ्रेंस आउट आपने वो रीजन आइडेंटिफाई किए थे? Yes, sir. After every attempt, I used to have a diary. I used to point out, okay, what I can improve in the interview, what I can improve in the GTO, what I can improve in the psychology tests.
and I was improving them as well. Later on, I took some external guidance as well. Initially, I was not in favor of taking some external guidance, but later on, आदमी के हाथ में जो आता है वो आदमी करता है कि किसी भी तरह कुछ हो. बिल्कुल. But नहीं हो पाया. On my 8th attempt, I had started to get this feeling that maybe it's not for you, buddy. You need to look for some other option. And coincidentally, my last few attempts were also quite good because I was not as desperate as my previous attempts. But I could not get recommended even in my last attempt. I still remember कि जब last attempt का result आने वाला था and they give you half an hour कि आप बाहर जाइए, half an hour में list आएगी. So I had another person with me जो उसका भी last attempt था, तो मेस में गाना चल रहा था and we were just dancing together कि okay last है, होगा नहीं होगा कोई नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो उसके बाद जब लास्ट अटेम्प्ट हो गया, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो ऐसा लगा कि चल अब नौकरी कर लेते हैं, या फिर आपने कैसे प्लान किया कि यार मुझे कोई और एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए? क्योंकि 11 फेलियर के बाद जर्नली हम बहुत डिप्रेस डाउन हो जाते हैं. मतलब अगर मैं आपकी जगह होता मैं बहुत डिप्रेस डाउन हो चुका होता और मैं सोचता कि यार अब चल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करना शुरू कर देती है इंटरनली. हम सोशली डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना, थोड़ा आइसोलेशन हो जाता है. तो आपने कैसे प्लान किया कि कोई और एग्जाम? मतलब बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा आपके लिए. Sir, it was very difficult and moreover it was a very emotionally also it was very difficult because I was coming from a फौजी फैमिली और ये सोचना कि यार मैं ठीक ठाक पढ़ता भी हूँ, ठीक ठाक है फिटनेस और मैं नहीं हूँ लायक रिकमेंडेशन के, तो इट वाज आई वुड से अ सेटबैक माइंड सेट के हिसाब से कि नहीं हुआ यार, लोग की कहीं दिक्कत रह गई. बट देन जो दूसरे एग्जाम से बिकॉज आई वॉज ऑल्सो श्योर कि I was putting in efforts and I was improving visibly. Why I was not getting the results is a different case because SSB का process ही थोड़ा inherently अलग है. You can't be absolutely sure why you do not get recommended. तो जब recommend नहीं हो पाया तो I had some seniors in my study library. तो वहाँ पे शिवन सर थे, मनीष सर थे, उनके साथ जब मैं था तो this point of financial independence it comes down very heavy. इनिशियली जब आप सोचते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में इट लुक्स कि ठीक है एक पॉइंट है, बिल्कुल होना चाहिए, बट व्हेन यू एग्जैक्टली स्टार्ट फीलिंग इट, जब आप घर से पैसे मांगने में आपको दिक्कत होने लग जाए, जब आप खुद को रोकने लग जाएं कि सेकेंड ईयर में तो मैं बहुत खर्चे करता था, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दैट फील्स वेरी हैवी. और उस चक्कर में मैंने कुछ एग्जाम्स दिए. मैंने SBI क्लर्क का भर दिया, मैंने IBACIO का भर दिया एंड आई वॉज नॉट एबल टू रियली क्लियर इट बिकॉज उस टाइम बिल्कुल आई वॉज एट द रॉक बॉटम. बट आई स्टिल केप्ट प्रिपेयरिंग कि नहीं कुछ ना कुछ होगा. तो UPSC की तैयारी फिर शुरू की थिंकिंग कि अगर UPSC क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो देर आर अदर एग्जाम्स. मेरे जो सीनियर हैं IPS हैं सर, शिवन सर, उनका भी CAPF क्लियर हुआ. दैट वाज द फर्स्ट होप कि ओके शायद मेरा भी CAPF हो जाए. नहीं, आप बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे जब आपने SSB का 11th जो है आपने अटेम्प्ट दिया होगा, आपको क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, और उस रॉक बॉटम पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता हूँ, जो कि अगेन SSB से तो मुझे लगता है काफ़ी टफ एग्जाम है सर. एंड मतलब एक एग्जाम ना क्रैक होने का था और बहुत बड़ा टफ एग्जाम पकड़ रहे हो, तो ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार कोई सिंपल एग्जाम पकड़ के एक बार घुस जाऊँ सिस्टम में, फिर उसके बाद UPSC के बारे में सोचता हूँ. मैं अगेन मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट अगर आपकी जगह हो ना तो वो इस टाइम टूट जाते हैं और फिर वो कोई ईजी पाथ पकड़ते हैं. बट आपने ईजी पाथ नहीं चूज़ किया अपने लिए, आपने अपने लिए अगेन एक डिफिकल्ट पाथ चूज़ किया. तो वो आपका कैरेक्टर शो करता है कि आप हार मारने वाले में से नहीं हो, यू आर ट्रूली अ फौजी फ्रॉम इनसाइड. तो किस तरीके से आपने उसको अप्रोच किया, मतलब कि मुझे एक हायर एग्जाम की तरफ जाना चाहिए? आपने बताया कि आपके जो है दोस्तों ने रिकमेंड किया, बट एक इंटरनल जो एक मोटिवेशन कहाँ से आई आपको UPSC के लिए? सर यू मेंशन्ड अ वर्ड कि आदमी टूट जाता है सर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट सम बॉयज़ लाइक मी जो मिडिल क्लास बॉयज़ हैं जिनको भेजा गया है बाहर, बिल्कुल तो सर टूटना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. कुछ ना कुछ तो करना है. और सर उस टाइम पे UPSC इसलिए चूज़ किया, इट वाज नॉट एग्जैक्टली आई वाज श्योर कि UPSC होगा ही बिकॉज उसका तो नेचर ही ऐसा है UPSC सिविल सर्विसेज का. बट आई वाज श्योर कि अगर मैं UPSC के लिए जान लगा के मेहनत करूँगा तो जो दूसरे एग्जाम्स हैं CAPF हो गया, EPF हो गया, इसमें मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे काफ़ी. सर ये मेरी अप्रोच थी और मेरे सर आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच सीनियर्स, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, उन्हीं की वजह से सर जो हो पाया वो हो पाया सर. और लोकेश अगेन ना मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जब आदमी का रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता तो उस केस में ना आदमी दो रास्ते में जा सकता है. एक रास्ता है गंदा रास्ता जहाँ पे आदमी नेगेटिव थॉट्स पे जो है घुस जाता है, कंपनी गलत हो जाती है. तो यहाँ पे अगेन अपने अपना कंपोजर कैसे मेंटेन किया कि यार नहीं यार मतलब कंट्रोल्ड रहना है, अभी भी वो अपना करेक्टर अपनी जो रास्ता है वो सही चुनना है. वो कंपोजर कई बार ना आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि गलत रास्ता चुन लेते हैं जब उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो वो कंपोजर कैसे आपने मेंटेन किया? अगेन मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं सर जो मल्टीपल एग्जाम्स में फेलियर की वजह से डिप्रेस्ड हैं सर, और
नशा हो गया, सुसाइड की थॉट्स हो गई, मेंटल डिप्रेशन हो गया, ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वो कंपोजर कैसे आपने मेंटेन किया जो आपको इन प्रॉब्लम से बचा के जो है ले आया आगे तक? सर आई हैव टू पार्ट्स टू दिस आंसर. पहला ये है सर कि वी हैव ऑल हर्ड ऑफ द फ्रेज दिस टू शैल पास. हो जाएगा ये, राइट. हमेशा सुनते हैं. मेरा ये मानना है कि सर सिचुएशन चेंज तो होती है बट सिचुएशन चेंज करनी भी पड़ती है. सिचुएशन विल चेंज विद टाइम बट यू ऑल्सो हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स. एंड प्राइमरीली आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चेंजिंग द सिचुएशन, क्योंकि उस टाइम पे आदमी तो रॉक बॉटम पे है, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इज़ द एनवायरनमेंट दैट यू आर इन. एनवायरनमेंट इन द सेंस कि कंपनी कौन सी है आपकी, आपके दोस्त कौन हैं, आपके सीनियर्स कौन हैं, वो आपको बहुत आसानी से उस फेज़ से निकाल सकते हैं और एटलीस्ट दे विल मेक द फेज़ बेरेबल. राइट. तो वो बड़ा अच्छा बहुत बढ़िया. एक ना मैंने एक डायलॉग भी सुना है जो मुझे काफ़ी जो है अच्छा लगा सर. कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में लगे ना कि आप नरक में पहुंच गए हो, मतलब आपकी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई है, तो नरक में रुकना कौन चाहेगा, वहाँ से तेज भागो और ताकि जल्दी बाहर निकल पाओ. तो आपने मुझे बताया था जब हम आपसे बात कर रहे थे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने एक बार आपको ये भी फील हुआ कि यार जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यूपीएससी की काफ़ी टाइम से, इनकी सिलेक्शन नहीं हो रही तो मेरी सिलेक्शन कैसे होगी सर. तो वो फीलिंग अगेन काफ़ी डिप्रेसिंग होगी. और फिर आपको जो है यूपीएससी के आपने अटेम्प्ट दिए, तो कैसी आपकी मतलब जर्नी रही यूपीएससी की जिसने आपको और जो है यूपीएससी से फिर? सर राइटली सेड सर कि जब मैं अपने सीनियर्स को देख रहा था, दे वर स्मार्टर देन मी एज वेल एंड दे वर पुटिंग इन मोर आवर्स देन मी. आई वाज नॉट यूज्ड टू स्लॉगिंग एंड इवन देन वो फाइनल रिजल्ट नहीं हो पा रहा था. किसी का प्री हो रहा था तो मेंस नहीं हो रहा था, किसी का मेंस हो रहा था तो इंटरव्यू नहीं हो रहा था, कोई इंटरव्यू के बाद भी मेरिट आउट हो जा रहा था मल्टीपल अटेम्प्ट्स में. सर इनिशियली व्हेन योर सीनियर जब वो नहीं कर पाते हैं तो इसका थोड़ा सा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है कि अरे उनका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा. बट देन व्हेन यू सी द सेम सीनियर, वो फिर से जुट गए उसी में. अगर इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, एक हफ्ते बाद दूसरा प्रीलिम्स है, और जो मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने फटाफट मेरे से ही नोट्स मांग के कि बड्डी मेरे पास अपने नोट्स नहीं हैं, इंटरव्यू के चक्कर में मैं पूरा वो हो रखा हूँ तो अपने नोट्स दे दो. मेरे नोट्स लेके हमने एक हफ्ते पहले छोड़ दिया था प्रीलिम्स का. उस एक हफ्ते में जितना हो पाया उन्होंने पढ़ा, इवन इन दैट माइंडसेट, एंड देन ही क्लियर्ड प्रीलिम्स. सर जब सामने सामने ये सब आप देखेंगे, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं सर मेरे पास शेयर करने को, बट ये जब आप सामने देखेंगे तो इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर. दोस्तों यही है कि मतलब जो मतलब बहुत इंटरनली मोटिवेटेड है ना कि मुझे करना ही करना है, भले ही वो आज नहीं तो कल हो, तो लोग कैसे भी रास्ता बना लेते हैं. यस सर. लोकेश, आप बहुत ब्लेस्ड हैं सच में कि आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो आपके आसपास ही थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया. लोकेश, ये जो प्रिपरेशन चल रही थी इसके बाद आप CAPF एग्जाम देने गए और आपका ऑल इंडिया रैंक 5 आया सर. तो क्या फीलिंग थी उस दिन जब आपका 5 रैंक आया? मतलब ऐसा लगा कि यार बरसों की जो मेहनत थी वो फाइनली रंग लाई? क्या जो आपकी जो है उस टाइम की सिचुएशन थी, आप मुझे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी गूज बम्प मिले. सर जब CAPF का एग्ज़ाम मैं दे रहा था, एज आई सेड मैं 11 बार बाहर हो चुका था SSB से, तो आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन. आई जस्ट वांटेड 1 सीट, कि एक सीट मुझे मिल जाए, दैट इज़ ऑल. इसके बाद मैं छोड़ दूंगा प्रिपरेशन, चला जाऊंगा नौकरी करने. बट जब सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू के लिए पूरा जोर लगाया, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फैक्ट कि मैं SSB से बाहर हुआ बट SSB का सारा एक्सपीरियंस मुझे UPSC के इंटरव्यू में काम आ गया, CAPF के इंटरव्यू में काम आ गया. आई गॉट above average marks in the interview as well, which helped me gain this rank, although I was not expecting it. तो जब वो सिलेक्शन हो गया तो इनिशियली आई रियली कुड नॉट बिलीव कि ऐसा हुआ है, बिकॉज मेरे जो सीनियर्स थे उनसे भी अच्छी रैंक आ गई थी मेरी अचानक से. तो जैसे ही आया तो मैंने सबसे पहले घर पे भी नहीं बताया, मैंने अपने सीनियर को कॉल किया. ही वॉज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, तो उन्होंने वो कॉल उठा नहीं पाए. फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे बताऊं या मैं सीधा ही चला जाऊं उनके सामने, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी देयर एक्सप्रेशन कि फाइनली इस बार हुआ है. इस बार ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ और ठीक है टिकट करवा लो आ जाओ, इस बार नहीं हुआ है. बट वो नहीं हो पाया बिकॉज समवन एल्स टोल्ड देम कि ठीक है आपके बच्चे का हो गया. दे कॉल्ड मी ओनली फ्रॉम दैट साइड, और ठीक है वो हो गया. फिर मैं खुद चला गया उनसे मिलने के लिए, एंड बिल्कुल ब्लेसिंग था. रात में मैं पहुंचा था 11 के आसपास, एंड यूजुअली माई पेरेंट्स आर अस्लीप बाय लाइक 9, बट उस दिन रात के 3-4 बजे तक कोई नहीं सोया. फिर हम सोए, फिर 10-15 दिन आराम से रहे, फिर आई केम बैक टू दिल्ली. बहुत ही अच्छी फीलिंग रही होगी और एक रिलीफ मिला होगा सर, है ना. और मतलब मैं ये अगेन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी बहुत अच्छी मेहनत करोगे ना, तो भले ही वो उस एग्जाम में काम आना है, लेकिन आपके आगे वाली जर्नी में वो बहुत काम आने वाली है. तो इनकी SSB की प्रिपरेशन जो SSB में शायद काम नहीं आई, लेकिन वो इनकी CAPF की प्रिपरेशन में काम आई. तो अब जो है ऑल इंडिया रैंक 5 आपका आ गया सर. उसके बाद आपने अगेन UPSC की तैयारी करी और उसी दौरान शायद आपको EPFO के बारे में पता लगा सर.
तो ईपीएफओ एग्ज़ाम क्यों चुना आपने? क्योंकि देखो आप अगेन डिफेंस से स्टार्ट हुए थे, डिफेंस में आपने अच्छा रैंक पकड़ लिया, फिर आप सिविल सर्विस में आए और अब ईपीएफओ स्टैट्यूटरी बॉडी में आप जो है जाना चाह रहे थे। कहाँ से आपको ईपीएफओ के बारे में पता लगा और क्यों आपने इसको एक प्लान चुना अपनी लाइफ के लिए? सर जहाँ तक पता चलने की बात है सर, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो 2 ऑफ माई सीनियर्स हैड गिवन दिस एग्ज़ाम, 1 कुड नॉट क्लियर, 1 क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड देन आई गॉट टू नो कि उन्होंने क्यों चूज़ किया है। तो उनके भी 2-3 अटैम्प्ट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ओके आगे मैं पकड़ रही हूँ और उसके बाद फिर मैं साथ में प्रिपेयर करूँगी। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मेरा यूपीएससी प्री क्लियर हो गया था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एज वेल, सीएपीएफ इंटरव्यू एज वेल। तो मैंने सोचा कि ठीक है ईपीएफओ भी दे देते हैं। जब ईपीएफओ का रिटर्न दिया था तब आई डिड नॉट हैव एनी जॉब, उस टाइम सीपीएफ का कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो रिटर्न दे दिया था मैंने और किसी तरह क्लियर हो गया विद गॉड्स ग्रेस। जब क्लियर हो गया उसके बाद आई हैड 2 ऑप्शंस। नाउ आई कैन आइदर गो फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, अ वेरी वेरी रेप्यूटेड पोस्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हुआ मेरा कुछ उसमें, और आई कैन गो फॉर ईपीएफओ। नाउ आई एम इन द कंडीशन कि चूज़ कैसे किया जाए, बिकॉज मन तो मेरा सर बिल्कुल वर्दी का ही है, आई हैव दैट बैकग्राउंड। बट आई फील कि जब आदमी अपने स्टूडेंट फेज को तब छोड़ता है when he is almost 100% satisfied that I gave my 100% and this is what I achieved. Right. I feel with all due respect to both the jobs कि I have something left in me. I feel कि मुझे और करना चाहिए और इसीलिए थोड़ा मतलब दिल पे पत्थर रखे सर मैं इस साइड को आया हूँ एंड सर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा आपका जो है एक रैशनल डिसीजन है जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। बट यहाँ पे ना मैं आपके जो है आंसर से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जनरली लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि हम जब मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, और वो बहुत ही एक ग्रे एरिया में जा रहे होते हैं। आप असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और साइड बाय साइड आप ईपीएफओ का ईओ एग्जाम और ईपीएफसी एग्जाम भी देने की सोच रहे थे। 3 जर्नी आप एक साथ पैरेलली जो है जी रहे थे। तो कैसे आपने टाइम बैलेंस किया कि इन तीनों एग्जाम से मुझे मतलब अप्रोच करना, और आपने तीनों ही एग्जाम में अच्छा जो है परफॉर्म भी किया। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ, आपका असिस्टेंट कमांडेंट भी जो है क्लियर हुआ और आपका ईओ भी क्लियर हुआ सर। तो ये जो एक अप्रोच थी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये पीरियड है फरवरी 2023 से लेके जो है जून 2023 का, जुलाई 2023 का सर, ठीक है। इस पीरियड में आपकी डेली क्या जो है प्लानिंग रहती थी कि आप तीनों एरियाज़ को जो है अच्छे से चला रहे थे? मैं अगेन ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ठीक है, मन में डाउट होगा कि यार ईपीएफओ को प्रिपेयर करें ना करें, स्टेट पीसीएस दें या ना दें, पूरा जो है टाइम यूपीएससी पे लगा दें, मतलब उनको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा होगा। तो आप शायद एक एग्जाम्पल बन सकते हैं जो उनको गाइड कर सकें इस पर्टिकुलर पीरियड पे। सर देयर इज़ अ रीज़न कि मैं क्यों पहली बार 3 एग्ज़ाम्स की तरफ जा रहा था। आइडियली वन शुड नॉट कि अगर आपका कोई एक है जो भी एग्ज़ाम आपने सोचा हुआ है, आप उस पर अपना 100% दें। क्योंकि मेरा नहीं हो रहा था इससे पहले, तो मैं जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में मैंने ये भी भर रखा था, वो भी भर रखा था। आई वॉज नॉट श्योर कि प्रीलिम्स होगा या नहीं, देन आई वॉज नॉट श्योर कि सीएपीएफ के कहीं इंटरव्यू में मैं मेरिट आउट हो जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ईपीएफओ भी दे देते हैं, साथ में कुछ होगा। दैट बीइंग सेड, देयर आर ऑफ कोर्स चैलेंजेस। जब आप इट्स अ कॉमन फ्रेज कि इफ़ यू चेस 2 हेयर्स यू वोंट गेट एनी, तो वो भी था मेरे दिमाग में कि अगर आप तीनों करने जा रहे हैं, पता चला एक भी नहीं हुआ आपसे। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव अ वेरी प्लान्ड स्ट्रक्चर, बी वेरी क्लियर कि जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो क्या है, वो मैं कैसे मीट करूँगा, मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे, क्या डेडलाइंस रहेंगे। अगर ईपीएफओ का एग्ज़ाम है या फिर प्रीलिम्स के साथ में आप कर रहे हैं या फिर सीएपीएफ का इंटरव्यू भी साथ में, यू नीड टू डिवाइड योर डे। 24 घंटे हर एक किसी को मिलते हैं, 8 घंटा सोना ही सोना है सबको। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि 8 घंटा सोना, 9 घंटे सो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो 1 घंटा एक्स्ट्रा आप सो रहे हो वो आप फिर एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी उसमें, और उसमें आपको डिवाइड करना होगा। मेक अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, डेडलाइंस रखिए, आप टारगेट्स रखिए, सो दैट यू फील कि ओके आई एम प्रोग्रेसिंग इन ऑल ऑफ देम, एंड देन विद गॉड्स ग्रेस में भी 3 में से 1 तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अच्छा आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप रैंडम प्रिपरेशन करोगे ना फिर कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप प्लान प्रिपरेशन करोगे और आपके पास डेडलाइंस होंगी ना तो आप कहीं ना कहीं एक डेफिनेट पॉइंट पे पक्का पहुंचोगे। और लोकेश, आपने जब इस एग्जाम का सिलेबस पहली बार देखा होगा तो आपको अकाउंट्स दिखा होगा, आपको आयरन लेबर लॉ दिखा होगा, जिसका आपसे दूर दूर से नाता नहीं था, ठीक है, आपने कभी भी इनको प्रिपेयर नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। यस सर। तो इन कंपोनेंट्स को आपने कैसे अप्रोच किया, आपने कैसे डिसाइड किया कि यार हाँ ये कंपोनेंट्स पढ़ने और ऐसे पढ़ने सर? तो वो आपकी अप्रोच क्या थी? सर एज यू सेड सर, पिछले आंसर से ही मैं थोड़ा इसमें जोड़ूंगा। जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज एंड डी प्रायोरिटाइज। सो जब मैंने इसका सिलेबस देखा, मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, मेरे पास सीनियर्स भी थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प कर दी मेरी।
तो मैंने सर फाइनल डिसाइड किया कि ओके, सिंस आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है, ऑल्दो इसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट भी है जो मेरे को अलग से पढ़ना है। उस टाइम सर मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन की बुक उठाई और उसके सारे आंसर सॉल्व किए, और जो ये स्पेसिफिक पार्ट है इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज एट्सेट्रा, इसके मैंने आंसर्स और एक्सप्लेनेशन देख लिए उस टाइम पे कि क्या है, मतलब यू गेट अ बेसिक आइडिया। बिकॉज मेरे पास सर उस टाइम 20 डेज थे, 20 डेज में यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। सो प्रायोरिटाइजेशन मीन्स कि उस टाइम में जितना भी आपको टाइम पीरियड मिल रहा है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो, एंड देन लीव रेस्ट टू डेस्टिनी। राइट। और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आपका प्रीलिम्स का जो है पेपर क्वालिफाई हो गया, अब आप मेंस की तैयारी भी कर रहे थे, तो मेंस की प्रिपरेशन के साथ ईओए को 20 दिन चलाया आपने, तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ईओए छोड़ो, मेंस की तैयारी करते हैं, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है मेंस लिखने का, तो कैसा आपका जो उस टाइम माइंड सेट था कि यार कैसे दोनों एग्जाम्स को अगेन टारगेट करूँ? रहा था सर, बिल्कुल रहा था। उस टाइम में नॉट जस्ट मेंस, आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ इंटरव्यू। तो सर ये तीनों चीज़ें चल रही थी। मेंस की मैं स्ट्रैटेजी बना ही रहा था बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू क्लियर प्रीलिम्स, बट फॉर्चुनेटली आई डिड। तो उस टाइम मैं मेंस की भी तैयारी शुरू की, और साथ में इंटरव्यू का एक फ़िक्स टाइम था कि ओके इतना टाइम मैं दूंगा इस चीज़ को, उसमें मुझे ये करना है, इन लोगों से बात करनी है, यहाँ पे मॉक्स देने हैं, वो पूरा लाइक इट्स रिटन ऑन अ डायरी, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट कि अब जो आप साथ में मैनेज कर रहे हैं। और ईपीएफओ के लिए ओके आई हैव दिस मच टाइम, दीज मैनी आवर्स इन दीज नंबर ऑफ डेज, इससे मुझे ये करना है, वो मैं ऐसे करूँगा, इसके बाद रिजल्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने बहुत ही प्लान प्रिपरेशन करी है सर, वो करना पड़ेगा। ग्रेट। तो लोकेश, मैं अगेन आपसे ना, अब जो आपने पूरी प्रिपरेशन करी, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन में फंसा पड़ा है, ठीक है, मैं फंसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 साल बाद ये दलदल बन जाता है जहाँ से आप चाह के भी निकल नहीं पा रहे होते, और कई बार वो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन कई बार हमें बहुत रिजल्ट नेगेटिव भी देखने को मिलता है। तो आप क्या सलाह दोगे उन बच्चों को जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से निकल नहीं पा रहे हैं, कि क्यों उन्हें ईपीएफओ एग्जाम की तरफ जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? Absolutely, sir. Sir, the very nature of the UPSC exam is it has its 3 stages, and even if you get to the interview stage and you get merit out, it's almost like back to square one. Right. फिर से prelims की unpredictability, फिर से आप पूरा 3 महीना मेंस लगाओ, मेंस की पूरी अनप्रडिक्टेबिलिटी, 3 महीने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, फिर आप इंटरव्यू जाओ, इंटरव्यू में सम पीपल से बोर्ड्स वगैरह का भी हो जाता है कभी कभी। सो येस, वी हैव अनसर्टेनिटी, बट ओनली द पीपल हु आर इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी रियलाइज की हाउ मच इट टेक्स टू गो टू द इंटरव्यू। द पर्सन हु हैज़ बीन टू द इंटरव्यू एंड कुड नॉट गेट इन, एंड द पर्सन हु डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, आसमान ज़मीन का अंतर है उन लोगों में। बिल्कुल। तो सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, और अगर आपको लगता है कि यू स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट, आपको लगता है कि आप और कर सकते हो, तो ईपीएफओ सर ऑफ कोर्स जो इसका मैंडेट है, इट्स मोर टुवर्ड्स सोशल सर्विस, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उस साइड है। इट्स ऑल्सो वेरी क्लोज टू द कोर नेचर ऑफ द सिविल सर्विसेज। दिस इज ऑल्सो द आंसर दैट आई गिव इन द इंटरव्यू, व्हाई आई वांट टू गेट इट जॉइन यूपीएफओ। यस सर, तो वो है, और साथ में आप द नेचर ऑफ द जॉब इज यू कैन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट साइमल्टेनियसली। दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज रियली गुड फॉर। नहीं, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला कि कोई डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं है, आपको किसी डिफरेंट एरिया में लेके नहीं जा रही है। मतलब इवन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू आर प्रिपेयरिंग 70% फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। राइट। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। सर, तो आप ऑलरेडी सीएपीएफ का इंटरव्यू दे चुके थे, आपको एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू का अंदाजा था, लेकिन ईओए का इंटरव्यू डिफिकल्ट रहा या फिर मॉडरेट सेम लाइन पे रहा आपकी? सर थोड़ा मॉडरेट ही कहेंगे उसे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू गो स्मूथ, बट उतना नहीं रहा था, एंड बट आई थिंक आई मैनेज्ड इट डिसेंटली। कौन सा बोर्ड था आपका? सर एज फार एज आई कैन रिमेंबर, आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर द नेम। ओके, अरविंद सक्सेना सर और संजय मैडम अलका सरोही मैम? नो, नो इशू। तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, और क्या वो एक्सपेक्टेड लाइन में था या फिर कुछ आपको रैंडम क्वेश्चन देखने को मिले? सर बिफोर गोइंग फॉर द ईपीएफओ इंटरव्यू आई हैड मेड श्योर कि मैं अपना डेफ क्लियर कर लूँ, और मैं ईपीएफओ के बारे में जितना पढ़ सकता हूँ उतना मैं पढ़ लूँ, इश्यूज़ वगैरह के बारे में पढ़ लूँ, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह के बारे में टेक्निकलिटीज़ क्लियर कर लूँ अपनी, टू द एक्सटेंट दैट इज़ पॉसिबल। तो मैं वो करके गया था, एंड आई वॉज डिसेंटली कॉन्फिडेंट कि अगर नहीं भी आएगा तो दैट वुड बी अ क्वेश्चन दैट शी वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि आना चाहिए उतना। तो व्हेन आई वेंट इनटू द रूम, तो जो चेयरवुमन, आई ग्रीटेड हर, एंड देन शी आस्क्ड मी, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इट वाज ऑब्वियस कि आपका पहले से सिलेक्शन हो रखा है, व्हाई आर यू कमिंग, इट्स अ लेवल 10 पोस्ट, यू आर कमिंग टू लेवल 8. So I tried to justify that. I had practiced that in the mock as well, so that was helpful. And she only asked me this question, that was all. She then directed the other person to ask me questions, and then for a split second I thought that maybe the interview is over now.
परहैप्स दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली, परहैप्स दे आर थिंकिंग दैट ये कोई अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है जो यहाँ पे आ गया है. बट स्टिल जो सेकंड जो फैकल्टी थी वहाँ पे, जो मैडम थी, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू बिकॉज द क्वेश्चंस वर फ्रॉम माय हॉबीज़. जो डिबेटिंग सोसाइटी मैंने ज्वाइन की थी, शी गेव मी अ टॉपिक, शी टोल्ड मी कि आप इसमें फॉर भी बोलो, आप खुद ही को डिबेट करो इसमें. Okay. And then she asked me questions which a person cannot prepare for, and that is what I liked about it because I was also able to answer that. वो भी है. And then the third person, that was not a very good part of the interview because वो factual questions और बहुत मतलब I had to put a lot of effort in remembering the answers to those questions. Environment के section से पुराने questions आने लग गए. Tell me the forest laws during the British times. तो it was very difficult. And जब आप याद करते हैं आंसर्स को, तो देयर इज अ वैक्यूम इन बिटवीन, Right. सो यू हैव टू फिल दैट वैक्यूम एज वेल, अदरवाइज इट गेट्स ऑकवर्ड. Right. सो यू हैव टू फिल द वैक्यूम कि ओके सर, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, ओके दिस मस्ट बी दिस, एज फार एज आई कैन रिमेंबर. आप कह रहे हैं, उसमें जान लग रही है थोड़ी आपकी, एंड देन आई केम आउट. सो मे बी आई थॉट कि ओके इट वॉज नॉट एज गुड एज द CAPF इंटरव्यू, बट अगेन आई वॉज होपिंग फॉर द रिजल्ट सर. एंड व्हाट मेक्स इंटरव्यू डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था इंटरव्यू का, लगभग 1.5 साल बाद इंटरव्यू आपका हुआ ईओ एग्जाम का. उस टाइम तक आप असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके थे, तो कहीं लैक ऑफ सीरियसनेस भी आ चुकी थी ईओ के इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू की खास बात यह है कि जब तक इंटरव्यू इज लाइक एन एलिफेंट, आई हैड हर्ड समवेयर, इट्स लाइक एन एलिफेंट. दूर से आपको हार्मलेस दिखेगा बट जब सामने आ जाएगा वो, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि क्या आ गया. तो वो हर एक बार ही होता है इंटरव्यू के साथ. बट अगेन जैसे ही शेड्यूल आया था, आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. मुझे पता था कि जब शेड्यूल आ जाएगा एटलीस्ट आई विल हैव 15 to 20 days. अगर वो पहले भी आ जाता है, इवन ऑन द फर्स्ट डे आई विल हैव 15 to 20 days, एंड उसमें हो जाना चाहिए मेरा. बहुत बढ़िया. और ये जो आपने मुझे एक बार बताया था कि आप शायद CAPF का रिजल्ट जो है नहीं शेयर कर पाए थे पेरेंट्स से, बट ईओ का रिजल्ट आपने सामने जाके बताया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? अगेन क्योंकि मैं ना इस क्वेश्चन से अगेन आंसर से पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप 2 जनवरी 2025 को जब ईओ का रिजल्ट आया था और जब आप वहाँ पर खुद को देख रहे थे और 5 साल पहले के लोकेश को देख रहे थे, तो क्या डिफरेंस आ चुका था लोकेश में इस टाइम तक? सर इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस 5 साल में, तो मेजरली जो डिफरेंस था सर वो था इन टर्म्स ऑफ द टफनेस, द माइंडसेट. कि ओके इट्स नॉट कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा होगा, बट इट इज़ कि अगर नहीं भी हुआ तो भी आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, सफ़र जारी है मेरा, मैं कर लूँगा. बहुत बढ़िया सर, ये मेजर डिफरेंस है. बाकी देयर वर अदर डिफरेंसेस एज वेल, बट ये मेजर डिफरेंसेस है. तो फिर कैसे जो है वो रिजल्ट की जो आप स्टोरी मुझे सुनाइए एक बार, कैसे आपने रिजल्ट बताया पेरेंट्स को और क्या रिएक्शन था फादर और मदर का? सर एक्चुअली सर जब जैसे ही इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल खत्म हुआ, पीपल वर स्पेकुलेटिंग कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा. बट फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट वाज नॉट अ बिग इशू फॉर मी, क्योंकि रिजल्ट कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल जब भी आएगा. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द सोफा हैविंग सम टी, एंड देन आई लुक्ड एट माई फ़ोन. तो उस पर व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस आए हुए थे, कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस फ्रॉम सम सीनियर्स एंड माई क्लासमेट्स. तो आई गॉट रियली एक्साइटेड, बट इवन देन आई हेल्ड ऑन कि नहीं अभी नहीं बताऊंगा. हो सकता है नाम मेरा हो, रोल नंबर किसी और का हो सकता है, देयर कैन बी सम अदर लोकेश कुमार एज वेल. सो आई जस्ट ओपनड इट, माई फिंगर्स वर ट्रेम्बलिंग दैट टाइम कि ये मेरा ही रोल नंबर है ना. देन आई वेंट टू सी माई एडमिट कार्ड एज वेल दैट दिस इज़ फाइनली माई रोल नंबर एंड दिस इज़ फाइनली माई नेम. एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स. तो वो जो सामने सामने की जो खुशी थी सर, वो बहुत ज़्यादा मतलब दिस इज समथिंग दैट इज इम्प्रिंटेड इन आवर हार्ट्स. राइट. तो सर वो बड़ा अच्छा लगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड लोकेश, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो पूरी जर्नी थी इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस सर. तो कोई ऐसी मोमेंट जिसको आपने पक्का रियलाइज़ करके आपकी आंखों में आंसू आए होंगे कि हाँ यार अब जो है मतलब वो मोमेंट जो थी उससे मैं ओवरकम हो चुका हूँ, कुछ ऐसा आप जो है याद करना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में? सर ओवरकम कर चुका हूँ. हाँ, मतलब जिसको आपको सच में उस दिन लगा हो कि यार हाँ यार अब तसल्ली आई, जो पॉइंट मैंने उस टाइम सोचा था अब ये जाके पूरा हुआ है. सर आई थिंक जब CAPF का फाइनली हुआ था तब आई हैड दैट दिस साई ऑफ रिलीफ. ऑल्दो एम्बिशंस पहले से ही ऊंचे थे सर, बिकॉज गेटिंग इनटू डिफेंस इज ऑल्सो अ वेरी एम्बिशियस एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग. तो ठीक है, वो एम्बिशंस पहले से ही ऊंचे थे, तो आई वॉज इमोशनल दैट टाइम. और सर जब उसके बाद तो सर फिर यूज्ड हो जाते हैं आपकी, ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. और अगेन लोकेश, मैं आपको ना थोड़ी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में वापस लेके जाऊंगा. कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स जो आप बताना चाहो कि जिसको हर एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी में फेस करता ही करता है, 3 चैलेंजेस और जो ओवरकम करने बहुत ज़रूरी हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन एक चैलेंज होता है, एंजाइटी एक चैलेंज होती है. तो आपकी जर्नी में कौन से 3 मेजर चैलेंजेस है जो आपने बहुत कॉमनली देखे ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन और जिनको आपने ओवरकम भी किया?
तो प्लीज़ सर चैलेंजेस तो 3 तो ख्याल से 30 होते हैं वैसे, लेकिन मेजर चैलेंजेस इफ आई टॉक अबाउट इज सबसे पहला तो सर देयर इज़ लॉट टू मैनेज एक्चुअली। आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ रही हैं, उसी वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज़ वाई यू नॉट एबल टू गिव योर 100%। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है और लाइफ है थोड़ा सिंपल रखें, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी पे लाएं, सिंपल रहें थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल एडवेंचरिज्म और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह अगर आप ना चलाएं तो आपके लिए बेहतर है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है वो, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू you will be having higher chances to clear the exam. Although since all of us are young, it's very natural for us to go for social media, show off, tell everyone कि देखो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, बट अगेन मतलब एक फोमो भी आ जाता है ना कि कहीं सोशल मीडिया पे ना जाके हम कुछ मिस तो नहीं कर गए यार। सर आता है, बिल्कुल आता है, स्पेशली व्हेन यू कुछ एक्सेप्शन सर ऐसे होते हैं, हमेशा मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं जिनकी सोशल लाइफ भी बड़ी अच्छी होती है और एकेडमिक लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। सो वॉट समटाइम्स पीपल सी लुक एट देम एंड देन सोचते हैं कि हम भी भाई कर लेंगे ऐसा। प्लीज़ डोंट डू दैट, एक्सेप्शंस होते हैं। मैं और आप ज़्यादातर लोग इफ़ आई टॉक अबाउट, हम लोग एक्सेप्शंस नहीं हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, साथ में डेस्टिनी भी चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, ये आपने भी पहला चैलेंज बताया मुझे। सर अनदर चैलेंज वुड बी आई थिंक सोशल मीडिया से ही रिलेट कर सकते हैं सर, जब जो आप रील्स वगैरह देखते हैं सर। सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव फेल्ट कि जो रील का जो कल्चर आ गया है सर, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, इट हैज़ अफेक्टेड मी एज वेल। एंड मैं अपने सीनियर से भी काफ़ी बार ऐसे कन्वर्सेशन करता था कि सर क्या है ये, एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि ठीक है इग्नोर करो यार, इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज उसमें देयर इज़ अ फैक्टर कि अगर वो रील आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन इट प्रॉबली मीन्स कि शायद आप डीमोटिवेटेड हो, या शायद आप इनसिक्योर हो, या आप में मेहनत करने की एबिलिटी नहीं है। पीपल समटाइम्स पुट देयर स्टेटस एज वेल, स्टोरी एज वेल इसमें। तो आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट कि रील्स वगैरह से आप थोड़ा दूर रहें। दिस इज़ नॉट जस्ट माई सजेशन बट माई सीनियर सजेशन एज वेल, कि आप उनसे थोड़ा दूर रहें। जो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स होती हैं, आप उनको हटा सकते हैं, उसका कुछ खास मतलब नहीं है, आपकी प्रिपरेशन में भी नहीं है। राइट। लोकेश, तीसरा चैलेंज मैं आपको बताऊंगा जो अगेन आपने पक्का फेस किया होगा, वो है कंसिस्टेंसी का इशू। मतलब आप एक लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, बर्नआउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो वो जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी लगभग 4-5 साल, वो कंसिस्टेंसी के पीछे मतलब आपने वो चैलेंज कैसे ओवरकम किया? सर डेफिनेटली सर, कंसिस्टेंसी इट्स स्टिल अ चैलेंज फॉर मी एज वेल। कोई भी इसको 100% तरीके से पूरा नहीं कर पाता। इट्स नॉट कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कोई रोबोट्स हैं, दे आर नॉट रोबोट्स। आई हैव सीन इट पर्सनली एज वेल। तो कंसिस्टेंसी को सर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू हैव अ प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हैव सम टारगेट्स, डेली टारगेट्स। यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जो रियलिटी सर ये है कि इट्स लाइक यू आर स्विमिंग इन एन ओशन, you are putting in a lot of effort to swim and yet you feel you are not reaching anywhere. So it's very important कि आपको थोड़ा लगे कि ओके कम ही मूव किया, कम ही इम्प्रूव किया, लेकिन कुछ तो किया, आज किया, एक हफ्ते में किया। सो हैव सम टारगेट्स। ऑल्सो बीच बीच में आपको आप एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स कहते हैं उनसे, वो आप ले सकते हैं। समथिंग कंस्ट्रक्टिव, डोंट गो फॉर सोशल मीडिया। आप कुछ अच्छा खाना खा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ऑल्दो दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। लेकिन अगर आप किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे, पार्क्स में जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन कम बैक प्रिटी वेल। तो लोकेश, आपका वो क्या था एरिया जिसके थ्रू आप मतलब एक बार रिफ्रेश होके आते थे, या अपने बर्नआउट को जो है रीटैकल करते थे कि यार ये अप्रोच मुझे फॉलो करनी है, ये एक्टिविटी मुझे करनी है, जिससे मुझे थोड़ा सा कूल फील होगा? सर मेरा सर सिंपल स्पोर्ट्स है सर। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट खेल लो, रनिंग कर लो, फुटबॉल खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, सीनियर से बात कर लो, कुछ पुरानी आपकी कोई, एवरीवन हैज़ अ फेवरेट मूवी जिससे जो उन्हें अच्छी लगती है, वो आप देखोगे तो फिर से एक रीस्टार्ट टाइप का मिलता है कि नहीं यार ठीक है कर सकते। तो लोकेश, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस या मूवी कौन सी है? सर फेवरेट मूवी आई वुड से 2-3 मूवी हैं सर। एक कलाम है, सर एक मसान है। मसान, राइट। यस सर। सो बाकी सर मुझे मिलिट्री मूवीज़ का थोड़ा शौक है, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं सर। और फेवरेट हीरो हीरोइन? सर ऐसे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है, बट ये है कि ओके मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, आप तो अपने एरिया के लोग ज़्यादा सही है, बहुत बढ़िया है। तो लोकेश, अब हम सेशन के एंड में आ गए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एडवाइस उन फेलो एस्पिरेंट्स को पक्का दीजिए जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े डिमोटिवेटेड मूड में हैं लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आप क्या सजेशन देंगे उन बच्चों को जो कि आपकी तरह ही थे, 2023 के लोकेश की तरह, और वो चाहते हैं कि भाई अपने कैरियर को एक नई डायरेक्शन दें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके? सर तो पहला सजेशन जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ये है
कि आप जो सेल्फ बिलीव जैसे कहते हैं, मेरे सीनियर ने ये बात मुझसे कही थी, मुझे आज तक याद है कि अगर सेल्फ बिलीफ आपके अंदर है तो हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होने वाला है। तो सेल्फ बिलीफ रखें और उसको आप कॉम्प्लीमेंट करें अपनी मेहनत के साथ, अपने एक्शन के साथ, वेल स्ट्रक्चर्ड एक्शन के साथ। प्लानिंग करें, टारगेट्स रखें अपने और अपना पूरा 100% दें। अपने एनवायरनमेंट को आप थोड़ा कंपैटिबल रखें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना रखें, सिंपल लाइफस्टाइल रखें, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आप ना करें, तो आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। बी हम्बल, जिसका नहीं हो पा रहा है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है उसके बाद बी हम्बल, डोंट मेक देम इनसिक्योर ये कह के कि मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया, और आप उन्हें सजेस्ट करें, आप उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो इट ऑलवेज हेल्प्स। सर दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। ग्रेट दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन हमें ये लगा, जहाँ पे लोकेश ने बहुत दिल से अपनी चीज़ें बताई और बहुत अच्छा हमें जो है ज्ञान मिला। एंड लोकेश, मैं यही जो है दुआ करूँगा कि आप अपने कैरियर में जो और अपने लिए सोच रहे हैं वो आपको जो है मिले और आप नई हाइट्स इस पर्टिकुलर जर्नी में आपको जो है मिले। तो थैंक यू वेरी मच लोकेश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।